السلام علیکم، آداب۔ گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ۔ شام کے 6 بج چکے ہیں۔ نیوز ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں ظہور لولابی۔ خبرنامے کی شروعات اہم اور بڑی خبر کے ساتھ کریں گے، اور سب سے پہلے بات آج ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ ایران امریکہ مذاکرات غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر ابھی تعطل برقرار ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ جو 2 ہفتے کی جنگ بندی تھی وہ کل ختم ہونے جا رہی ہے، تو ایسے میں اگر یہ مذاکرات نہیں ہوئے تو جنگ بندی کا جو وقت ہے وہ گزر جائے گا، اور کیا جنگ بندی میں توسیع ہوگی یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جہاں پاکستان میں لگاتار تیاریاں کی جا رہی تھی دوسرے دور کے بات چیت کے حوالے سے، امریکہ نے مکمل طور پر تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے بات چیت کے لیے، لیکن ایران کے طرف سے ابھی تک کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے۔ ایران نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے، دوسرے دور کی بات چیت سے انکار کر دیا ہے، اور آبنائے ہارمز کشیدگی کے باعث یہ تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔ لیکن بڑی بات یہ کہ جو 2 ہفتوں کی جنگ بندی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کا کل آخری دن ہے۔ کل جنگ بندی کی جو میعاد تھی وہ ختم ہوگی، اور اگر یہ مذاکرات نہیں ہوئے تو پھر جنگ بندی میں بھی توسیع نہیں ہو سکتی ہے، جس کے بعد جنگ پھر سے چھڑ سکتی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایران کی جانب سے اب تک کسی وفد کی شرکت کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ادھر انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ماہرین کے مطابق ایران کا موقف کافی حد تک مستقل رہا ہے، اور بظاہر نظر آنے والے متضاد بیانات دراصل ٹرمپ کی غیر واضح اور بدلتے ہوئے موقف کا رد عمل ہے، کیونکہ ٹرمپ لگاتار اپنے بیانات بدلتے رہتے ہیں، نئے بیانات دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایران کا بھی موقف بدلتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ایران نے ابھی تک اس حوالے سے تصدیق نہیں کی ہے کہ کیا وہ اس میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ صورتحال کے تناظر میں کشیدگی برقرار ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے طویل اور پیچیدہ مذاکرات درکار ہوں گے، جیسے کہ ماضی میں 18 ماہ کی بات چیت کے بعد معاہدہ طے پایا تھا۔ ایران نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کے امکانات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بگیہی نے واضح کیا ہے کہ فی الحال کسی نئے دور کی بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ خاص طور پر اسلام آباد میں متوقع مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، اور موجودہ حالات بامعنی مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ انہوں نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا ہے، اور مزید کہا کہ اگر امریکہ اپنی جانب سے کوئی وفد اسلام آباد بھیجتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران بھی ان مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب آبنائے ہارمز میں حالیہ واقعات اور جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بعد تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ فی الحال مذاکرات تعطل کا شکار ہے، تاہم سفارتکاری کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں ہیں، اور مستقبل میں کسی بھی بات چیت کا انحصار باہمی اعتماد، احترام اور امریکی رویے میں تبدیلی پر ہوگا۔ لیکن پاکستان اگرچہ تیاری کر رہا ہے، اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے، سیکیورٹی کو سخت کیا جا رہا ہے، امریکہ بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے، لیکن ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی مذاکرات کے حوالے سے مثبت پیش رفت نہیں ہوئی ہے کہ وہ ان مذاکرات میں شرکت کرے گا یا نہیں۔ اور بڑی بات یہ کہ جنگ بندی جو 2 ہفتوں کی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ کل ختم ہو رہی ہے، اور اگر یہ مذاکرات نہ ہوئی ہے تو جنگ بندی میں توسیع ناممکن ہے، جس کی وجہ سے مزید کشیدگی اور مزید یہاں پر تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ اعتماد مبنای ما طبیعی است که در مذاکرات با آمریکا حتما اعتماد نیست. هیچ اعتمادی بین ایران و آمریکا وجود نداره به دلیل خلافکاری‌های طولانی مدت و مستمری که انجام دادن. ما بر اساس منافع و مصالحمون تصمیم میگیریم. در مورد هر تفاهم یا توافق احتمالی هم باید به نحوی عمل بکنیم که اهرم‌های خودمون، توانمندی‌های خودمون تضمین کننده اجرای اون تفاهم باشه.
आगे बढ़ते हैं, बात भारत पाकिस्तान की करते हैं और आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के दरमियान फ़िज़ाई पाबंदियाँ लगातार बरकरार है। पहलगाम हमले के बाद मुकम्मल तौर पर फ़िज़ाई पाबंदियों की शुरुआत हुई थी, लेकिन फ़िलहाल इसमें मज़ीद तोसी कर दी गई है और पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद की बंदिश 24 मई तक बढ़ा दी है। पहलगाम हमले के बाद फ़िज़ाई रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे और जिसकी वजह से एयरलाइंस को तवील रास्ते इख्तियार करने पर वो मजबूर है, लेकिन पाकिस्तान ने ताज़ा नोटिफिकेशन में फ़िज़ाई हदूद की बंदिश को 24 मई तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारियों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 24 मई तक तोसी कर दी है, जिसके बाद ये पाबंदियाँ 1 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहेंगी। ये फैसला पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद सामने आया था, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। इस वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी। नोटम के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारियों, भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर इस्तेमाल या लीज़ पर लिए गए तैयारियों, हत्ता कि फ़ौजी परवाज़ों के लिए भी दस्तयाब नहीं होंगे। ये पाबंदी 21 अप्रैल से नाफिज होकर 23 मई की रात 11:59 तक बरकरार रहेंगी, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 24 मई की सुबह 5:30 बनती है। इधर भारत ने भी पाकिस्तानी तैयारियों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिसमें मज़ीद तोसी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस तवील पाबंदी के बायस भारतीय एयरलाइंस को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए तवील रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं, जिससे वक्त और अखराजात दोनों में इजाफा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये पाबंदियाँ बरकरार हैं और 24 मई तक ये पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई है और पहलगाम हमले के बाद इन पाबंदियों की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार फ़िज़ाई पाबंदियाँ भारत और पाकिस्तान के दरमियान बरकरार है। बात भारत पाकिस्तान के हवाले से हो रही है तो बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि ये पहलगाम हमले की पहली बरसी है और पहलगाम हमले के बरसी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को बाइसरन वादी में हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें इस हमले का बदला लिया गया। लेकिन पहली बरसी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जब पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई तो आपको बता दें कि मुख्तलिफ ऑपरेशन में 46 मिलिटेंटों को हलाक भी किया गया है। और पहलगाम की बाइसरन वादी में 22 अप्रैल 2025 को हुए मोहलिक दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी से कबल सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इस हमले में 26 अफराद, जिनमें ज़्यादातर सयाह शामिल थे, अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। गुलिस्तान न्यूज़ को मौसूल तफसलात के मुताबिक सीनियर सिक्योरिटी अफसरान मुख्तलिफ सतहों पर इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं ताकि एक जामा सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी जा सके। इस मनसूबे के तहत सयाहती मराकज़, मजहबी मकामात और अहम तनसीबात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वाज़ह रहे कि पहलगाम के इलाके में पेश आए इस हमले के बाद सयाहत को शदीद दचका लगा था, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 सयाहती मकामात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। तम बाद मरहलावार सिक्योरिटी जायज़ों के बाद कई मकामात को दोबारा खोल दिया गया। हुकाम के मुताबिक सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पहलगाम में सयाहती खिदमत फराहम करने वालों के लिए QR कोड पर मबनी शनाख्ती निज़ाम भी मुतारिफ कराया गया है। दरअसल बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब अजला, कुठवा और सांबा में मुश्तबा दहशतगर्दाना नकलो हरकत के इतलात के बाद सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मजहबी मकामात खुसूसन वैष्णो देवी मंदिर पर भी निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जिनमें तकरीबन 46 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें हमले में मुलव्वस अनासर भी शामिल थे। जम्मू खिते के अजला, किश्तवाड़, उधमपुर और कुठवा में भी मुश्किल जगराफिया और मौसमी हालात के बावजूद कार्रवाइयाँ जारी रही और अहम कामयाबियाँ हासिल की गई। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि सरहद पार दरअंदाजी की कोशिशों के पेश नज़र निगरानी का अमल जारी है और मौसूल खुफिया इतलात की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं ताकि मज़ीद इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। लेकिन चूँकि कल पहली बरसी है, इसके पेश नज़र श्रीनगर और सयाहती मकामात के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। पहलगाम अटैक को पूरा 1 साल होने जा रहा है। कल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें कई टूरिस्ट और साथ ही साथ लोकल्स की भी जान जो है वो चली गई थी। और ऐसे में अगर बात करें, कल पूरा 1 साल होने वाला है और उसके साथ साथ श्रीनगर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी हर जगह पर तैनात करके रख दी गई है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं खासकर जो टूरिस्ट पॉइंट्स है, जैसे कि डल लेक की बात करें तो वहां पर भी
जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है मजीद ना हो सके। खासकर अगर हम टूरिस्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, हर एक टूरिस्ट पॉइंट्स पर जो है सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है, तैनात करके रखी गई है ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए। उसके साथ साथ अगर हम बाकी एरियाज की भी बात करते हैं, लाल चौक हर एक जगह पर इस वक्त सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कल पूरा एक साल जो है बाइसरन अटैक को होने जा रहा है, जबकि कई सारे टूरिस्ट और उसके साथ साथ लोकल्स की भी जान चली गई थी। इसके लिए जो है सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नादिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। पहलगाम के बाइसरन में सयाहों की जान बचाने हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के लिए तामीर किए गए नए मकान का आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ऑनलाइन ज़राए से की, जबकि इस मौके पर महाराष्ट्र के मुतअद्दिद काबीना वज़रा भी शरीक रहे। यह मकान महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह की याद में तामीर किया गया है, जो 22 अप्रैल 2025 को पेश आए बाइसरन हमले में शहीद हुए थे। ये इक़दाम उनकी बहादुरी और कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के तौर पर देखा जा रहा है। तो उसके बाद जब आपकी टीम यहाँ वारिया कमी महसूस क्या कि यह इंसान ये नश पे बोड़ नीचू आ पे जुदा तो अमुक महसूस इंसान वही जख्म से लोगमत अंदरकन यह अंदरकनी कुछ वुचान, मगर फकर अम चीज़ों कि पहलगाम 22 अप्रैल वाक़ा गो तथ मज आदिल हुसैन शाह मे लड़के पंच शहीद यम तत गई तिहद जान बचावन बचावन पन जू दुत बे बाकी तत हजार सासों मज लोग यम तत तम बचे फकर इज्जत थो तम कश्मीर इज्जत हिंदुस्तान इज्जत बलंद थो शुक्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिजबिहाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमला जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दचका साबित हुआ। उन्होंने गुज़िश्ता साल इस वाक़े में जान गंवाने वालों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो ख़ास तौर पर उन अफराद को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हमला आवरों के खिलाफ मज़ाहमत की और अपनी जानों का नजराना पेश किया। समझता हूँ वो एक ज़बरदस्त धक्का था इस रियासत के लिए, और मैं सिर्फ श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ उन सबको जिन्होंने वहाँ पे शहादत दी, और ख़ासकर उस बच्चे को भी जो खड़ा हो गया था उनके खिलाफ और पीछे नहीं हटा। अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे और दीदार मोहम्मद। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना ने आज लाल चौक का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तानी से बात करते हुए पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले ने न सिर्फ कीमती जानों का नुकसान किया बल्कि कश्मीर की माशियत खासतौर पर सयाहत के शोबे को भी किया है। रविंदर रैना ने कहा कि इस वाक़े के बाद सयाहों की आमद में कमी वाक़ा हुई, जिससे मकामी लोगों के रोज़गार पर भी मनफी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले खिते के अमन और तरक्की के लिए नुकसानदेह है और इनसे निपटने के लिए सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। 22 अप्रैल 2025 का वो खौफनाक मंजर, वो बेगुनाह लोगों की लाशें, पहलगाम के बाइसरन को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, वो केवल टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाया गया था, वो कश्मीर को निशाना बनाया गया था। वो कश्मीर की रूह पर हमला किया गया था। वो खौफनाक मंजर जब भी याद आते हैं तो रूह कांप जाती है। वो दर्दनाक मंजर, वो बेगुनाह लोगों का कत्ल, और उसके बाद कश्मीर के अंदर कितना बहुत हुआ। जिस कश्मीर में 6-6 महीने के लिए एडवांस बुकिंग्स, होटल्स, टैक्सीज, गाइड्स, 6-6 महीने के लिए एडवांस बुकिंग्स थी, वो सब खत्म हो गया था।
हम अमन के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं, हर जगह अमन होना चाहिए। ये पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का खेल ठीक नहीं है। इंसान की जानें बहुत कीमती होती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि उस हमले के बाद बहुत सारे सेक्टर्स हिट हुए, टूरिज्म हो या हमारा ट्रेड कॉमर्स हो, जो गवर्नमेंट ने उसके बाद इसके लिए पैसा खर्च किया, इनिशिएटिव्स लिए, उसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ग्राउंड पे? कोशिशें तो हुई, लगातार कोशिशें हुई। मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो ऐसे सयाह वाले हमारे मकाम है वहाँ पहुँचे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कैंपेन ली। मैं खुद पहलगाम बाइसरन हमले के बाद लगभग एक हफ्ता पहलगाम रुका, कश्मीर आया, हमने कैंपेन चलाई, कुछ दिन तो गुजारो कश्मीर में। और मुझे याद है उसके बाद बंगाल, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से लोग कश्मीर में वो लोग मैसेज करते थे। धीरे धीरे कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ कि जो एक साल पहले उस पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले से पहले जिस प्रकार के मंजर थे यहाँ, उसमें बहुत कमी आई। महकमे तालीम में काम करने वाले बावर्चियों ने चिनार पार्क हंदवारा में एहतजाज करते हुए कम अज़ कम उजरत एक्ट के नफाज का मुतालबा किया। एहतजाज की क़यादत ज़िले सदर इशरत बानो ने की, जिन्होंने बावर्चियों के दरीना मसाइल को उजागर करते हुए हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बरसों से खिदमत अंजाम देने के बावजूद बावर्चियों को इंतहाई कम उजरत दी जा रही है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। मुजाहिरीन ने हाथ में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की और कहा कि उन्हें कम अज़ कम उजरत एक्ट के तहत यानी मिनिमम वेज एक्ट के तहत मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने इंतज़ामिया को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात जल्द पूरी ना किए गए तो आने वाले दिनों में एहतजाज को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। अप्रैल पे स्ट्राइक पे कि करा टीचर जुल्म, आमत आज बोई बागस में चिनार पार्क में करा गवर्नमेंटस यह अपील कि उमर अब्दुल्ला, सकीना जी पन्निस चीफ हेड मिनिस्टर एजुकेशन तमिस यह रिक्वेस्ट करा सैनिस बारस मज दि सोच आज पतिम 2 वरी गई वन सान खतर कर के ये बाकिन खतर लच लच रुपये 1.5 लाख रुपये अस कुकन बिचारन यमन मंडन मिस्किन खतर क्या कि क्या यूत मतलब पे यूत जुल्म क्या सफरत कर क्या दर दर ठोकरी खाना वतो पे त्रा बच्चे बाल पन नान सुबह स्कूल टीचर मास्टर जड़ सब सारी कर सी कत कहीं मान ये बाकी डिपार्टमेंटन हुरो ओतर असम्बली में कोर अम वजह प्रोटेस्ट गो 6 अप्रैल पे वन उमर सोब सन मांग कर पूर मगर सन बोजान सोन कहें 2 हाथन शुरन बत रना 3 हाथन शुरन बान छलान बर्तन छलान अत दजान पलो दजान सन कत बोजान सकीना जी न उमर सोब तो यह रिक्वेस्ट करान बढ़ तनख्वाह तो बे कर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू बे थन बहरियो तनख्वाह तो यह गुजारिश करान बढ़न तनख्वाह बे कर मिनिमम वेजेस ईद बोड़ दह 10 रुपये त्रावान क्या बच्चे पारान प्राइवेट स्कूलन गवर्नमेंट स्कूलन पारान तमन योत रुपये 10 वर्दी अनहो। ऑल डेली जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के तरफ के बैनर तले जो हमारा प्रेसिडेंट है सैनिक चीफ साहब, उसकी क़यादत में बोल रही हूँ। हमने हमारी जो यूनियन है इसकी कॉल थी, हम 6 अप्रैल से फुल स्ट्राइक काम छोड़ हड़ताल जो कॉल थी हमारी काम छोड़ हड़ताल, वो आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी तक हमारी जो भी डिमांड्स थी, जो भी जेन्युइन डिमांड्स थी, अभी तक वो पूरी नहीं की गई।
इसलिए आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं कि हमारी जो भी डिमांड है सरकार उनको पूरा करे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम भी गरीब लोग हैं और वो बच्चे भी गरीब है जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके लिए हम खाना बनाते हैं। हम 200-250 बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, अपने हाथ जलाते हैं, चूल्हों पे खाना बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हों पे। आज गैस नहीं है, हम मिट्टी के चूल्हों पे खाना बनाते हैं। टीना जी अपने मोदी साहब से, अगर मोदी साहब ये बोल रहा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज ये माएँ बेटियां क्यों सड़क पे है? मोदी साहब ने भी एक वादा पूरा किया।